everyone, welcome to the English class. In our last video, we have solved one factual passage for note making. Now this time we'll be solving the discursive passage. We'll be making notes out of that. The process is just the same as I told you. Before starting the answering this question, you have to write the answer number and section A. This is note making is section A. Then you have to write the title. If you cannot understand the title or if it doesn't come to your mind in advance, then you can leave a line for that. After making note, you can give the suitable title. Then you write the word notes, and then you have to start giving the headings. Okay. After giving headings, you have to draw lines. As I told you in the last video, you have to draw the lines with light pencils so that you can write proper. Write your points, your subheadings and subheadings with proper indenting. All right. Then you will start reading the passage. See, this is the passage we are having, discursive passage. Here it starts like this: information is power. Information is power. So it is all about information. It seems it is predictable, therefore, that those in authority will seek to manipulate others through the control of data, because information is powerful. Information. So the authorities may manipulate others. They may misguide others by use of these data. However, all information in democratic society should be freely available unless there is specific, well-formulated reason for withholding it in the interest of security. Withholding means stopping it from getting leaked out to the general public. तो उसको रोक सकते हैं अगर सिक्योरिटी अफेक्ट होती है तो, अदरवाइज वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए जनरल पब्लिक को. दिस इज अ थॉट विच हैज बीन सेड इन दिस पैराग्राफ. ओके, नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, इट फंक्शंस अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अदर राइट्स. अगर ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तभी दूसरे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हमारे पास में उनकी कुछ मीनिंग रहती है. ठीक है, वी विल नॉट बी चीटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल्स इफ वी आर हैविंग दिस राइट. So it is the underpinning of democracy. It is a base of what is the underpinning? Underpinning is a cornerstone or the base stone. It is a stone or it is the base on which any surface stands. So this freedom of information is a base right, or it is the base of the whole concept of democracy. ठीक है. Now, information held by public bodies is not only for the benefit of officials, politicians and other designated people associated with the organization, but also for the public as a whole. Whatever information the public bodies, public officials, government officials are having, that is for the use of not only those officers in the office, but it is also useful to the politicians. वो डाटा वो यूज़ कर सकते हैं, सेंस उनके जो वो देख सकते हैं एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है, या जो पॉलिसीज़ वो उन्होंने बनाई है वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई है. ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आएगी? इसी सारे जो इनको जो डाटा मिलेगा पब्लिक ऑफिसर्स से, उसी से. तो ये इन्फॉर्मेशन पॉलिटिशियंस के काम आती है, अदर डेजिग्नेटेड पीपल एसोसिएटेड, दूसरे जो ऑफिसर्स हैं, रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिसर्स को वो इन्फॉर्मेशन काम आती है. इसके अलावा पब्लिक, जनरल पब्लिक को पता चलता है कि हमारे एरिया में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना अचीवमेंट हुआ है. ओके, ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ है. देन unless there are good reasons for withholding such information, all interested parties should be able to access it. More importantly, access means to get it. सबको, अगर कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है, प्रॉपर लॉजिक नहीं है उसको रोक के रखने का, तब तक सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की लोगों के पास आनी चाहिए. दिट शुड बी अवेलेबल टू द पीपल. उनकी पहुंच होनी चाहिए लोगों की उस इन्फॉर्मेशन की तरफ. मोर इम्पॉर्टेंटली, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट. अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों पैराग्राफ में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में ही बताया हुआ है. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग अवर पॉइंट्स. एक तो पैराग्राफ रीड करके आपको फिर आपके हेडिंग्स स्टार्ट करने हैं. तो फर्स्ट हेडिंग जो है यही बनेगा, बिकॉज इट इज़, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ कि इन्फॉर्मेशन कितनी पावरफुल होती है या उसका इम्पोर्टेंस कितना है. ठीक है. नाउ हियर वी आर हैविंग फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में है. ये की रोल इन एनेबलिंग सिटीजन टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द गवर्नमेंट. ओके, एक्सपोजिंग द करप्शन, मिसमैनेजमेंट, ये सब इसके रोल है. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये इसके फंक्शंस है. ठीक है. सो दिस वी कैन बाइंड अप टुगेदर एज अ सेकेंड हेडिंग. ऑलराइट. नाउ थर्ड हेडिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज सेम थिंग, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन.
इज अ फंडामेंटल राइट बट इट मस्ट बी हेल्ड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो वही बात है जो यहाँ पे कही हुई है। देन व्हाट एल्स इज बीन सेड, इन इट्स एब्सेंस गवर्नमेंट कैन एंड अदर ऑफन डज बिहेव विद इम्प्यूनिटी। अगर ये फ्रीडम लोगों के पास नहीं है, गवर्नमेंट के लोगों के पास नहीं है, ये अगर ये इंफॉर्मेशन लेने की जो फ्रीडम या अधिकार या राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट फ्रॉड भी कर सकती है। इट इज़ आर्ग्यूड हाउएवर दैट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। लेकिन ये बताया गया कि ये राइट अधिकार तो है लोगों के पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स विच इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशंस। ऐसा अधिकार नहीं है कि नहीं किसी भी हालत में उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसे पता चला, ये एक एग्जाम्पल दिया है, इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR। ये एक जजमेंट है इंटरनेशनल कोर्ट का, जिसके हिसाब से ये फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बताया था कि नोट मेकिंग में आपको जो एग्जाम्पल्स होते हैं या कोई अथॉरिटीज़ का नाम वगैरह होता है वो नहीं लिखना होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ ओमिट करेंगे हम। लेकिन रीड करते हैं इसमें क्या है, स्पेसिफाई सर्टेन परमिसिबल कॉन्स्टेंट्स। इसने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए हैं, ये इसने रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन किए कि कौन सी कंडीशंस में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, विद होल्ड कर सकती है, उसको अपने पास ही रख सकती है। वन ऑफ दीज इज अ राइट टू ऑफ द स्टेट टू विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, जैसे कोई आर्मी का इन्फॉर्मेशन है या ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें जिसको लीक आउट होने से हमारे नेशन की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को देने के लिए बाउंड नहीं होती है। या जहाँ पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड है या हेल्थ और पब्लिक मॉरल्स अफेक्ट हो सकते हैं आगे चल के, ऐसी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो पब्लिक को लीक आउट करे। दिस इज इरेसिवली वेग एंड प्रोवाइड्स मैनी लूप होल्स। लेकिन इसका फ़ायदा गवर्नमेंट उठाती है। इसके फ़ायदा कैसे उठाती है, लूप होल्स लेती है। कैसे लूप होल्स लेगी, वो एक अपनी इनकी आड़ में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपा देती है जो उनको एक्चुअल में पब्लिक को बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। अब इसमें आगे क्या बताया हुआ है, पब्लिक राइट टू नो इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इन्फॉर्म पब्लिक डिबेट। बहुत सारे पब्लिक डिबेट में इसको डिस्कस किया जाता है कि ये हमारा अधिकार है या नहीं है, होना चाहिए कि नहीं है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, which has traditionally been dependent on the freedom to receive and impart information without government interference. However, it may also be argued that this does not mean a right to receive any type of information from the government. ये वही बात है जो यहाँ पे बती कि certain constraints होने चाहिए, कुछ controls, कुछ restrictions होने चाहिए। ठीक है, the same thing is repeated here. It is a of paramount importance that any restrictions on information or expression regarding security matters must designate in law only the specific and narrow categories of information absolutely necessary to protect a legitimate national security. ऐसी कुछ information वो रोक के रख सकती है जो national security के लिए चिंता बन सकती है। concern मतलब चिंता या टेंशन बन सकती है। A threat to national security can be defined. अब कौन सी चीज़ें हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बन सकती है, एनी एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई डाटा, ऐसी कोई जानकारी दैट इज इंटेंडेड टू इंसाइट इमिनेंट वायलेंस, जिसके बाहर आने से हिंसा फैल सकती है, वायलेंस फैल सकता है, और लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट लीक आउट करने के लिए बाउंड नहीं है। In addition, there must be a direct and immediate connection between the expressions and likelihood of occurrence of such violence. The public interest in having information at all times must remain a priority consideration in any FOI bills. Public interest मतलब लोगों का फ़ायदा सबसे पहले देखेंगे। जो राइट ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, कोई भी कानून बनेगा, बिल मतलब कोई भी लॉ बनेगा, तब सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि पब्लिक का फ़ायदा किस में है, लीक आउट करने में है या नहीं है। एंड दैट एनी डिनायल ऑफ दिस राइट शुड बी सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंट रिव्यू। मतलब अगर ये अधिकार गवर्नमेंट नहीं देती है तो लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए फ्री है वो। ठीक है, सो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में पूरा है। ये यही बात बताते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए लेकिन लिमिटेड। तो ये सारा कंस्ट्रेंट्स यानी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन के ऊपर है, तो इसको हम साथ में बाइंड अप करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो आप देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। ऐसी कोई डेफिनेशन या ऐसा कोई जजमेंट, इसको तो हम शॉर्टन नहीं कर सकते हैं, इनको हमको एज इट इज़ लर्न करना होता है।
तो इनको हम नोट्स में नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड टू फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी द रूल। ये रूल होना चाहिए कि लोगों को फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करें या इनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एंड सीक्रेसी एंड एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ बातें ऐसी हो जो सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल होती है, जो पब्लिक को लीक आउट नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया। इसका मतलब ये जो चीज़ है, यहाँ जो बातें बताई हुई है, उनको ये सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दिस ऑल वी कैन बाइंड इन द थर्ड पॉइंट, ओके। अगर हम इसको फोर्थ पॉइंट अलग से बनाएंगे तो इसमें जैसे मैंने कहा ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में को तो हमको शॉर्टन करना नहीं है, तो सिर्फ एक लाइन के लिए हम फोर्थ पॉइंट नहीं बनाएंगे, इसको इसी में इंक्लूड करेंगे, राइट। सो सी हाउ आई हैव मेड द नोट्स ऑन दिस। फर्स्ट है हमारा जो फर्स्ट हेडिंग था, इंफॉर्मेशन इज पावर, इट इज़ प्रोडिक्टेबल। तो ये इसके बारे में, पावर है तो ये पावर के रूप में क्या करता है, तो इट इज़ अ पावर, और ये बेनिफिट करता है, किसको बेनिफिट करता है, इट बेनिफिट्स ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, अदर डेजिग्नेटेड पीपल, ये इनको बेनिफिट करता है। सो दिस ऑल थिंग्स आई हैव इंक्लूडेड इन दिस। ये पोर्शन जो है ये इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में है, तो ये आप फर्स्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये फर्स्ट का सेकेंड पॉइंट बन जाएगा, और ये फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है, ये पावर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ बीन डन। नाउ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में उसके फंक्शंस तो वो क्या करता है, दूसरे राइट्स को फुलफिल करता है, फुलफिलमेंट ऑफ अदर राइट्स, और दूसरा है अंडरपाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इसके फर्स्ट और सेकेंड सब पॉइंट्स बन गए। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करता है, इट इज़ एन की कंपोनेंट टू ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट इज़ अ की ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट की का वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन है या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट जो है वो फ्रीली वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, उसकी डिपार्टमेंट की सारी नॉलेज पब्लिक अभी वो कितना काम कर रही है, किस फील्ड में अभी क्या प्लानिंग्स हो रही है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ से उसकी इनकम आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को पता होगी, ठीक है। और उसके बाद की कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट, सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो कोई अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटी होती है, दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट, यहाँ पे हम एक्टिविटी लिखेंगे। सो ऐसी किसी एक्टिविटी के लिए के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सकती है, भले वो गवर्नमेंट की क्यों नहीं, ठीक है। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको पता चले जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, या कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, या कोई करप्शन चल रहा है, तो दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वही सेम चीज़ है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस आई हैव अब्रीविएटेड, ये जो चीज़ है ये मैंने अंडरलाइन जो किए हुए हैं वो सब मैंने अब्रीविएट किए हुए हैं, दीज ऑल थिंग्स आई हैव अब्रीविएटेड, गवर्नमेंट इज नॉट अब्रीविएटेड। सो ये FOI ऑलरेडी अब्रीविएटेड दिया हुआ है, सो दिस विल नॉट इंक्लूड इन अब्रीविएशंस। FOE दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये एंड मैंने अब्रीविएट किया हुआ है, पहले भी हमने इसको अंडरलाइन किया है। फंडामेंटल बट नॉट एब्सोल्यूट, ये कैसा अधिकार है जो एब्सोल्यूट है, तो फंडामेंटल बेसिक है, इट इज़ अ बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल है बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ओके। अब ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल हमको नहीं लिखना है, लेकिन इस एग्जाम्पल में जो बात बताई गई है वो क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ पब्लिक डिबेट। हमेशा ये पब्लिक डिबेट में आता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन किस हद तक होना चाहिए लोगों के पास में। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन FIR नीडेड, क्यों ये ज़रूरी है, इसके हिसाब से ये जो वर्डिक्ट था इसके हिसाब से भी, और दूसरी भी जो डिबेट्स वगैरह होती है उसके हिसाब से ये क्यों ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्शंस मतलब वही कॉन्स्ट्रेंट, आप यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्यों ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोगों के फ़ायदे के लिए इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हैं। मे इंसाइड वायलेंस, कभी वायलेंस से बचने के लिए भी। ऑलराइट, सो हियर रिस्ट्रिक्शन इज नीडेड, और आप लिख सकते हो कॉन्स्ट्रेंट्स नीडेड, और नीड फॉर कॉन्स्ट्रेंट ऑन FOI, ऐसा भी आप हेडिंग लगा सकते हो, नीड फॉर कॉन्स्ट्रेंट और कंट्रोल ऑन FOI, ठीक है। अब लास्ट में फिर जैसे मैंने कहा था ये डेफिनेशन, ये इसका वर्डिक्ट है, तो ये हम एज इट इज़ हमको लर्न करना है, तो सिर्फ इसमें यही आएगा, सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट्स। यहाँ पे हमने अपना नोट एंड कर दिया, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट नोट, लेकिन इसमें सब कुछ इंक्लूड, ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड हो गया जो आपको बेसिक चीज़ें याद करनी है।
ठीक है। अब जैसे ये सारी ये जो चीज़ें हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये चीज़ें वो वर्डिक्ट्स में आते हैं या ये डेफिनेशंस वगैरह होती है, तो वो हमको एज इट इज़ लर्न करनी होती है। इनको हम शॉर्टन नहीं करेंगे, इसमें आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके कैसे हमने की टू अब्रीविएशंस बनाया, जो आपने अब्रीविएशंस यूज़ किए हैं, फिर से वही 6 अब्रीविएशंस हैं, 6 to 7 कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे इनको ट्राई कीजिए, कोशिश करें कि एक हेडिंग के अंदर कम से कम एक अब्रीविएशन या 2 अब्रीविएशंस हो, ठीक है। इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी ये डिफाइन किया है, ये SC तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, FOE आया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, राइट। अब कैसे समरी डिराइव की है, अब इसी नोट से हमने इस समरी डिराइव की है। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं, तो आप इससे रिलेटेड यहाँ जो भी लिखा हुआ है ना, वो सेंटेंस उठा के इसमें लिख सकते हैं। ऐसे भी आप अपनी समरी बना सकते हैं। थोड़े वर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इट्स ओके, एवरी मैटर विल बी इंक्लूडेड इन दैट। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे किसी का नाम वगैरह हो तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ओके, राइट। तो देखिए कैसे बनाइए समरी। इन्फॉर्मेशन, इट्स इम्पोर्टेंस, पावर एंड इट्स बेनिफिट्स। तो यहाँ पे ये पूरा एक लाइन में हमने बाइंड किया। कैसे किया है? इन्फॉर्मेशन इज पावर एंड इट बेनिफिट्स ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, अदर डेजिग्नेटेड पीपल एंड पब्लिक, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट पॉइंट एक लाइन में हो गया, ठीक है। नाउ FOI, इट्स फंक्शंस। तो अब यहाँ पे आया द बेसिक फंक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे बोला था, इसके अंदर आप कोई अब्रीविएशंस यूज़ नहीं करेंगे, तो ये बेसिक फंक्शंस है। ये फंक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आर फुलफिलमेंट, 2 बेसिक फंक्शंस हैं हमने यहाँ पे बताया, फुलफिलमेंट ऑफ अदर राइट्स एंड अंडरपाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसको हमने इंक्लूड किया, फुलफिलमेंट ऑफ अदर राइट्स एंड एक्ट एज एन अंडरपाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर आया की कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट, सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटीज, ओके। तो वही है, इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंड एनेबल्स द पब्लिक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और यू कैन से अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देन फिर थर्ड पॉइंट, FOE एंड FOI, फंडामेंटल बट नॉट एब्सोल्यूट। बेसिक है, ज़रूरी है, लेकिन एब्सोल्यूट मतलब ऐसे नहीं है कि अनकंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ पब्लिक डिबेट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन FOI नीडेड फॉर, क्यों रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी है, ये सब कुछ हम 2-3 लाइन्स में बाइंड कर देंगे। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है इसलिए इसको लिखा है। इन पब्लिक डिबेट इट इज़ आर्ग्यूड दैट इट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, इफ़ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट आर कंसर्न्ड। अगर ये चीज़ें रिलेटेड पब्लिक लोगों का फ़ायदा और नेशनल सिक्योरिटी, जो बार बार यहाँ इस पैराग्राफ पैसेज में बताया हुआ है कि बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है कि नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक इंटरेस्ट अगर रिलेटेड है तो उस वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इस पर होना चाहिए। SC ऑल्सो सपोर्ट्स इट, SC भी इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब अगर ये हमारा पूरा समरी है, तो देखा आपने हेडिंग भी वही लगानी है जो आपने यहाँ पे, टाइटल वही लगाना है जो यहाँ पे टाइटल लगाया हुआ है। समरी लिखना ज़रूरी है, B लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स इस तरह से कट होंगे इसमें। अदरवाइज जो नोट आपने बना दिया पूरा ये पैसेज जो है वो उसी पे डिपेंड हो, ये आपका समरी उसी पे डिपेंड होता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। वी ऑलरेडी सॉल्व 2 पैसेजेस, गो ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर पैसेजेस सो दैट यू विल गेट एक्यूरेसी ओवर इट। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें ईजी लगनी, जब 4-5 पैसेजेस जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ईजी लगने लगेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स जहाँ का सवाल है, जैसे ये यहाँ पे मैंने 85 वर्ड्स टोटल हुए, तो वो लिख लें आप इन द राइट हैंड कॉर्नर। अब लिख लो यहाँ पे कितने वर्ड्स हुए, 85 वर्ड्स हुए, 85 to 90, 80 to 90 वर्ड्स इज ओके, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर पैसेज, ओके। All right, see you in the next class with another topic on the writing skill. Thank you very much.